اے میری غریب بہنوں آؤ آؤ، میری غریب بہنوں میرے بھائیوں آؤ، 3 بار پڑھو اور کروڑپتی بنو۔ 3 بار پڑھتے ہی رب کعبہ کی قسم، آج 30ویں روزے جمعے کو صرف 3 بار پڑھتے ہی رب کعبہ کی قسم، پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ اوش تمہاری غربت اور غریبی کا آخری جمعہ ہوگا آج کے بعد۔ یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ دیکھیں، میں نے اس عمل کو آج سے ٹھیک 2 سال پہلے رمضان کی 30 تاریخ جمعے کو اللہ کی قسم پڑھا۔ یقین کریں مجھے اتنا ملا میرے دوستو۔ یہ وہ موقع ہے کہ آج اگر آپ نے اس موقع کو گوا دیا تو پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ اب آپ نے پہلے وظیفے کو 3 بار پڑھنا ہے، دوسرا وظیفہ یا اللہ یا محمد کا 7 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں تم نے ایک ایسا جملہ بھی پڑھنا ہے جو آج سے پہلے تم نے اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہوگا۔ یہ 3-4 چیزیں ہیں۔ 30 رمضان جمعہ ایسا موقع برسوں بعد ملتا ہے، اور جس گھر میں بھی یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لیا جائے، اس گھر کا بچہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں فقیر سے بادشاہ بنتا ہے۔ دیکھیں، میں نے بے شمار بہنوں بھائیوں پر آزمانے کے بعد 2 سال پہلے میں نے 2,500 سے 3,000 بہنوں کو یہ عمل بتایا ہے۔ یقین کریں، 30 رمضان جمعہ اگر اکٹھا آ جائے اور جس نے بھی اس عمل کو پڑھا فقیر سے بادشاہ بنا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اس لاڈلے جمعے کو 30 رمضان کو تنہائی میں بیٹھ کر پہلے نمبر پر یا اللہ یا رزاق یا غنی کو ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے جو آج سے پہلے تم نے اپنی زندگی میں نہ پڑھی ہوگی نہ سنی ہوگی۔ دیکھیں، یہ وہ ترتیب ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو تم نے آج سے پہلے نہیں پڑھا ہوگا۔ یہ دنیا کا سب سے قیمتی عمل ہے۔ میرا چیلنج تمہیں صرف 1 گھنٹے کا ہے۔ یہ عمل 3 منٹ میں، 5 منٹ میں، 10 منٹ میں، 15 منٹ میں اپنا کام دکھاتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ جو وقت لگتا ہے اثر کرنے میں 1 گھنٹہ۔ 1 گھنٹے میں بڑا سے بڑا قرضہ دور، بیماری دور، غریبی دور، بے اولادی دور، ایمرجنسی طور پر دنیا کی کوئی حاجت ہو، کوئی مراد ہو، ذاتی مکان کے لیے، قرضوں کے لیے، بیماری کے لیے، بے اولادی کے لیے، یہ دنیا کا سب سے قیمتی عمل ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر 30 رمضان جمعے کو ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے، اور فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلا وظیفہ اس عمل میں میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ پھر وہیں بیٹھے بیٹھے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ، اور اس کے بعد سورہ کوثر کو پڑھ کے عمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ دیکھیں، اگر تو اتنا بھی نہیں کر سکتا، تو یہ بچوں والا آسان سا عمل بھی نہیں پڑھ سکتا، تو پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے گا۔ خود دیکھیں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ ہو سکتا ہے 30 رمضان جمعہ آج سے 10 سال بعد آئے، تو دیکھیں آج موقع ہے، آج تمہارے پاس وقت ہے۔ یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا لے، یا آج میرے دوستو 30 رمضان کو جمعے کو میری ویڈیو تمہارے سامنے جیسے بھی آئے، تم اگر غریب ہو، تم بیمار ہو، لاچار ہو، پریشان ہو، اگر دیکھیں کوئی ایسی بہن جو چاہتی ہے جس کے اوپر سے ہر طرح کا ظلم ختم ہو جائے، ظالم شوہر قدموں میں، ظالم ساس قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، بیماری دور، غریبی دور، بے اولادی دور، دنیا کی ہر مشکل پریشانی کا چند سیکنڈ میں خاتمہ ہو جائے، تو آپ نے 30 رمضان جمعے کو یہ 3-4 چیزیں اکٹھی پڑھنی ہے، اور آخر میں اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ وہ میری بہنیں، میرے بھائی جو بالکل ان پڑھ ہیں، بالکل جاہل ہیں، اب میں آپ کو پہلا وظیفہ فل ڈیٹیل سے بتاؤں گا تاکہ آپ ایک ایک چیز سمجھ لیں۔ دیکھیں، ویڈیو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کاٹیے گا مت، کیونکہ اب میں آپ کو پہلے وظیفے کے بارے میں پوری ترتیب بتاؤں گا۔ دیکھیں، اس عمل کا پہلا وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ 30 رمضان جمعے کے دن کا پہلا وظیفہ دولت کا ایٹم بم وظیفہ ہے۔ دیکھیں، پہلے نمبر پر آپ نے 3 وظیفے پڑھنے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں یا اللہ یا رزاق یا غنی کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن میرے غریب، آج میری بتائی ہوئی ترتیب سے زندگی میں 1 بار پڑھ لینا، پوری زندگی کسی کے در پہ تمہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔
देखिए मेरे दोस्तوں, या अल्लाह, अल्लाह का वो नाम है जिसके आगे सब झुक जाते हैं। वो जाज़ात जिसके एक इशारे से फ़कीरी बादशाही में बदल जाती है, कुरान में आता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, यानी वही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। जब बंदा या अल्लाह कहता है तो वो सिर्फ नाम नहीं लेता, वो अपने दिल के दरवाजे आसमान की तरफ खोल देता है। ये वो सदा है जिस पर फरिश्ते रुक जाते हैं, रहमतें झुक जाती हैं और किस्मत के बंद दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगते हैं। या अल्लाह का मेरे दोस्तों वो राज, ये वो पुकार है जो रब को याद दिलाती है कि मेरा बंदा मुझे चाहता है, और जब रब चाहने लग जाए तो फिर रिज़्क़ ज़मीन से नहीं आसमान से उतरता है। और साथ में या रज़्ज़ाक़ू, यानी कि वो जो रिज़्क़ देने वाला है, रज़्ज़ाक़ बार बार यानी रिज़्क़ देने वाला है, बेहिसाब बेइंतिहा। कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है इन्नल्लाहा हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन, बेशक अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाला है, बड़ी कुव्वत वाला है। जब आप या रज़्ज़ाक़ु कहते हैं तो गोया आप कह रहे होते हैं ऐ मेरे रब, मैं दर दर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ तेरे दर पर आया हूँ। ये वो कलमा है जो तंगी को कशादगी में बदल देता है, जो खाली हाथों को भर देता है, जो बंद रास्तों में यानी कि जो बंद रास्तों में रास्ते निकाल देता है। हदीस का मफ़हूम है अगर तुम अल्लाह पर सच्चा भरोसा करो तो वो तुम्हें ऐसे रिज़्क़ देगा जैसे परिंदों को देता है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं, शाम को भरे पेट लौटते हैं। या रज़्ज़ाक़ू मेरे दोस्तों, ये सिर्फ रिज़्क़ नहीं देता, ये रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है, ऐसे दरवाजे जिनका आपने कभी सोचा भी ना हो। गनी मेरे दोस्तों, और साथ में आपने या गनियों को पढ़ना है। गनी ये क्या है? गनी यानी वो जो बेहिसाब बेनियाज, यानी कि जो सबसे बेनियाज है और सबको बेनियाज करने वाला है। कुरान में आता है अल्लाहु हुवल गनिय्यु, और अल्लाह ही सबसे बड़ा बेनियाज है। जब बंदा आज 30वें रोज़े को या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु या गनिय्यु को पढ़ता है, या गनिय्यु कहता है, तो वो दुनिया की मोहताजी से निकलकर रब की दौलत से जुड़ जाता है। ये वो नाम है जो दिल को फ़कीरी से ख़त्म करता है, जो दिल की मुश्किलों को दूर करता है, जो ज़िंदगी में ऐसी बरकत लाता है कि थोड़ा भी ज़्यादा लगने लग जाए। हदीस का मफ़हूम है असल गनी होना माल की ज़्यादती नहीं है, बल्कि दिल का गनी होना है। या गनिय्यु वो राज है, या गनिय्यु ये सिर्फ पैसे नहीं देता, ये इंसान को ऐसा बना देता है कि वो कभी मोहताज नहीं रहता। जब ये तीनों इकट्ठे हो जाएं मेरे दोस्तों, जब एक बंदा कहता है या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु या गनिय्यु 30वें रोज़े जुम्मे को, तो वो गोया ये कह रहा होता है ऐ मेरे रब, तू ही सब कुछ है, तू ही देने वाला है, तू ही नवाजने वाला है, और तू ही मुझे हर किसी से बेनियाज करने वाला है। फिर क्या होता है? आसमान के दरवाजे खुलते हैं, फरिश्ते रहमत लेकर उतरते हैं, और वो रिज़्क़ जो किस्मत में कहीं छुपा होता है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों, आज किसी वक़्त भी खामोशी से या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु या गनिय्यु से ये खुफिया अमल शुरू कर देना तो अर्श पर हलचल मच जाएगी। और रब फरमाता है मेरे बंदे ने मुझे पुकारा है, मैं इसके लिए हर तरह के बंद रास्ते खोल दूंगा। मेरे दोस्तों देखें, यूं ही ये अमल फ़ौरन गैबी दौलत की बारिश नहीं बरसाता। ये अमल दुनिया का सबसे कीमती अमल है। इस अमल का एक एक वजीफ़ा ख़जाने से भरा हुआ है, और यकीन करें ये तमाम ख़जाने जब आज इकट्ठे हो जाएंगे तो गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। लोग दरवाजे बजा बजा कर देकर जाएंगे तो आज तुम्हारे हाथ से दीन, ये देख कर हैरान हो जाएंगे। लोग पूछेंगे, क्योंकि जब तुम दूसरे वजीफे पर पहुंचोगे, गौसे पाक के असल में ये अमल गौसे पाक का बताया हुआ है। गौसे पाक फरमाते हैं अगर जिस घर में भी 30वें रोजे के दिन जुम्मा पड़ जाए और कोई गरीब अगर ये 3 चीजें पढ़ ले, फरमाते हैं मैं गौसे पाक अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं 3 मिनट में तकदीर के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। वज़ाही पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया। मेरे दोस्तों देखें, आपने जिंदगी में बड़े वजीफे पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं दावे के साथ कहता हूं आपने अपनी पूरी लाइफ में, अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा अमल किया तो छोड़ो, कभी सुना भी नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है, मेरा पूरी दुनिया के हर गरीब को चैलेंज है। 3 मिनट में कर्जे दूर, बीमारी दूर, लाचारी दूर, बेऔलादी दूर, रिश्तों की बंदिश खत्म। क्योंकि जब आप लोग इस अमल को तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद आखिर में सूरह कौसर का दुनिया का सबसे कीमती वजीफा एक खास तरतीब से पढ़ेंगे, यकीन करें एक हाथ में तस्बीह होगी, अभी अमल ख़त्म नहीं होगा, और जैसे ही अमल ख़त्म होने लगेगा आखिरी वजीफा पढ़ने से पहले पहले इंशाअल्लाह एक हाथ में तस्बीह होगी, दूसरे हाथ में गैबी दौलत की बारिश होगी। लोग दरवाजे पर आकर देकर जाएंगे। देखिए, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जनाब
हमारा कोई ज़रिया आमदन नहीं है। हमने कई बार कई लोगों से ये सुना है कि हमने कोई ऐसा अमल पढ़ा कि लोग आकर देकर गए, लेकिन हम पूरी ज़िंदगी गुजर गई लेकिन हमें कोई ऐसा अमल ना मिला। तो मेरे गरीब, आज तुझे वो अमल मिलेगा कि लोग दरवाजे बजा बजा कर देकर जाएंगे और तुम्हारे हासिदीन रिश्तेदार ये देख कर हैरान हो जाएंगे कि अचानक इसकी ज़िंदगी में इतनी तब्दीली कहाँ से आ गई। ये तो कल तक मांग मूंग रहा था कि मुझे 500 दो, मुझे 1000 दो, लेकिन अचानक इसकी जिंदगी में इतनी खुशियां, इतनी तब्दीली कहां से आ गई। मैं कलमा पढ़ के कहता हूं, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, देखें जब आप सेकंड नंबर वाला वजीफा अमल में शामिल करेंगे, या अल्लाह या मोहम्मद के साथ एक जुमला, देखें इस अमल में हर चीज के साथ एक जुमला शामिल करना है। इस अमल में हर चीज के साथ एक तरतीब शामिल करनी। ये अमल यूं ही असर नहीं करता। देखिए 30 रमजान जुम्मे को आप दुनिया में कहीं भी हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, आपने ये 3-4 चीजें पढ़नी है। अपने घर में बैठ के पढ़ लें, अपनी दुकान में पढ़ लें, अपने दफ्तर में पढ़ लें, कहीं भी पढ़ लें। पाबंदी ये नहीं है मेरे दोस्तों कि आपने घर में बैठ के पढ़ना है। आप दुकान में है, दफ्तर में, कहीं पढ़ लें। आपकी वो दुकान जहां पर सन्नाटे हैं, 30 रमजान जुम्मे को ये छोटा सा अमल पढ़े। मुश्किल से 30 सेकंड का वक्त लगेगा और यकीन करें 30 सेकंड का अमल अगर आपने बताई हुई तरतीब से पढ़ लिया, यकीन से कहता हूं सिर्फ 10 से 15 मिनट में बंद कारोबार चल पड़ेगा। बड़ी से बड़ी बीमारी दूर, परेशानी दूर। देखिए मेरे दोस्तों, या अल्लाह या मोहम्मद ये सिर्फ 2 नाम नहीं है, ये आसमान और ज़मीन के दरमियान सबसे ताकतवर ताल्लुक है। या अल्लाह यानी वो रब जो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, जिसके एक हुक्म से तकदीरें बदलती हैं। और या मोहम्मद वो हस्ती जिनके सदके ये कायनात बनी, वो वसीला जिससे बंदा रब के करीब हो जाता है। जब बंदा कहता है या अल्लाह या मोहम्मद, तो गोया वो कह रहा होता है, ऐ मेरे रब, मैं तेरे दर पर आया हूँ और तेरे महबूब के वसीले से आया हूँ। ये वो लम्हा होता है जहाँ दुआ ज़मीन से उठती है और सीधी आसमान को चीरती हुई अर्श तक पहुंचती है। देखिए दोस्तों, कुरान का मफहूम है अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ देता है, और हदीस का मफहूम है नबी पर दरूद भेजना दुआ को आसमान तक पहुंचाने का ज़रिया बनता है। यानी कि जब या अल्लाह के साथ या मोहम्मद जुड़ जाए तो दुआ में वो तासीर आ जाती है जो बंद दरवाजे भी खोल देती है। एक इंसान दोस्तों 30 तारीख जुम्मे को खामोशी से या अल्लाह या मोहम्मद के साथ जब एक ख़ास तरतीब शामिल करता है तो ज़मीन खामोश होती है लेकिन आसमान बोल उठता है। फरिश्ते कहते हैं ये वो राज है जिसमें मोहब्बत भी है, यकीन भी है। और रब फरमाता है मेरे बंदे ने मेरे महबूब के वसीले से मुझे पुकारा है, मैं इसकी तंगी को कशादगी में बदल देता हूँ। दोस्तों, भाई बहनों, ये दिल को रब से जोड़ देता है। या अल्लाह ये इंसान को मखलूक से हटाकर खालिक के दर पर लेकर आता है। और या मोहम्मद ये दुआ को खूबसूरत बना देता है, ये दुआ को कबूलियत के करीब लेकर जाता है, ये दिल में मोहब्बत, सुकून और नूर भर देता है। जब दोनों मिल जाएं 30 रमजान जुम्मे को एक खास तरतीब से, तो क्या होता है, बंद किस्मत जाग उठती है, रुका हुआ रिज़्क़ चल पड़ता है, गैब से मदद आने लगती है, दिल की बेचैनी सुकून में बदल जाती है। ये वो मकाम है जहां बंदा अकेला नहीं रहता बल्कि रब की रहमत और नबी की निस्बत इसके साथ होती है। दोस्तों, 2 साल पहले एक शख्स था थका हुआ, परेशान, हाथ उठाता है और कहता है, यानी कि या अल्लाहु या रज़ाकु या गनियों को एक ख़ास तरतीब से पढ़ता है, फिर या अल्लाहु या मोहम्मद को एक ख़ास तरतीब से पढ़ता है, फिर एक ख़ास जुमला, फिर सूरह कौसर को पढ़ता है। अचानक उसकी ज़िंदगी बदलती है, रास्ते बनते हैं और वो रिज़्क़ जो कहीं रुका हुआ था वो इसकी तरफ चलना शुरू हो जाता है। ये अल्फाज सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल से निकलने चाहिए। ज़बान से कहा जाए तो अल्फाज होते हैं और दिल से कहा जाए तो तकदीर बदल जाती। देखें आपने मेरे दोस्तों ये तमाम चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी लाजमी पड़ी होंगी, लेकिन आज जब 30 रमज़ान जुम्मा इकट्ठा आ जाए, गौसे पाक फरमाते हैं इस दिन अगर ये छोटा सा अमल पढ़ लिया जाए तो जिस घर में जिस जगह ये अमल पढ़ा जाएगा उस घर में अल्लाह की गैबी मदद चंद मिनटों में हाजिर होगी। लोग दरवाजे बजा बजा कर देकर जाएंगे और पढ़ने वाले के हासिदीन रिश्तेदार ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि अचानक उसकी ज़िंदगी में इतना कहाँ से आ गया। अब आपने या अल्लाह या मोहम्मद के साथ जो जुमला पढ़ना है सिर्फ 3 बार पढ़ना है, और यकीन करें मैं दावे के साथ कहता हूँ, देखिए आपने या अल्लाह जो कि अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है और या मोहम्मद नबी पाक का ज़ाती नाम है, दूसरे वजीफे को बड़ी तवज्जो से ध्यान से समझो, गफलत में लापरवाही में मत गुजार दे। मेरे गरीब 30वां रोज़ा है,
जुम्मे का आखिरी दिन है, आखिरी मौका है। अगर ये दिन भी तूने गुजार दिया गफलत में, लापरवाही में, दुनियादारी में, दोस्ती यारी में, है मेरे गरीब पूरी जिंदगी पछताएगा। है मेरी बहनों, रोज कहती हो ना सच्चे वजीफे बताओ, सच्चे वजीफे बताओ, तो आओ ना मेरी बहनों, सच्चे वजीफे लेकर आया हूँ, अपने सीने के राज लेकर आया हूँ। देखिए आपने 4 चीजें पढ़ी। देखिए अब आपने तन्हाई में बैठकर आज 30वां रोजा जुम्मे के दिन मेरी वीडियो आपके सामने जैसे ही आए, आपने 2 वजीफे मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपने तीसरे नंबर पर दुनिया का सबसे कीमती वजीफा, जो कि फकीरों को बादशाह बनाता है, जो कि मांगने वालों को बांटने वाला बनाता है, और आखिर में मैं पूरा अमल अलग से भी रिपीट कर दूंगा। मैं हर चीज आपको दोबारा भी समझा दूंगा, ताकि कोई बहन भाई ये ना कहे कि जनाब हमें अमल समझ में नहीं आया। मैं हर चीज आपको फुल डिटेल से, फुल तरतीब से, तादाद, तरीका, हर चीज समझाऊंगा। लेकिन अगर आपने गफलत में, लापरवाही में ये दिन भी गवा दिया तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अब आपने सबसे, देखें इस अमल का सबसे कीमती वजीफा, वो खुफिया जुमला जिसे फ़कीर पढ़ के बादशाह बने हैं, इस जुमले को आपने पहले नंबर पर 3 बार पहले कलमे के साथ ही पढ़ना है। देखें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वीडियो स्किप ना करना, बड़ी गहरी बात है। इस अमल का सबसे कीमती वजीफा है, सिर्फ 3 बार पढ़ना है, और 3 बार पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा। देखें आपने सबसे पहले मेरे दोस्तों 30 रमज़ान जुम्मे को तन्हाई में बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ लिया। देखें कोशिश करना दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, और देखें आपने पहले वजीफे को जिस तरह मैंने आपको बताया, दूसरा बताया, फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर जो वजीफा मैं बताऊंगा, पहला कलमा, और आपने साथ में मेरे दोस्तों अल्लाह पाक का वो नाम पढ़ना है जिसका मतलब है ऐ असबाब के पैदा करने वाले, ऐ गैबी दौलत की बारिश बरसाने वाले। देखें आपने अल्लाह पाक के बड़े नाम पढ़े होंगे, लेकिन आज या मुसब्बिबुल असबाब, या मुसब्बिबुल असबाब, या मुसब्बिबुल असबाब को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अब आखिरी घड़ियां हैं, आखिरी जुमले हैं। देखिए मेरे दोस्तों, अब आपने फौरी तौर पर आखिर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। मेरे गरीब देखो, सूरह कौसर तो बच्चा पढ़ता है, लेकिन मुझे 80-90% लोग एक ही बात कहते हैं सूरह कौसर पढ़ने के बाद, जनाबे आली सूरह कौसर पढ़ी, ये पढ़ा वो पढ़ा, हालात नहीं बदले। तो आज 30 रमज़ान यानी कि 30 रमज़ान जुम्मे के दिन दुनिया के जिस कोने में है, गाँव में है, गली में है, सारी दुनिया ने अगर मुँह फेर लिया है, सारी दुनिया ने अगर तन्हा छोड़ दिया है, घर खाली, दुकान खाली, मकान खाली, कंगाली, गुर्बत, गरीबी, लाचारी है, तो आज आपने 3 मोजज़ाती वजीफे जैसे ही पढ़ लिए, तो सबसे आखिर में आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। और यकीन करें, देखें इस अमल में सूरह कौसर सिर्फ 1 बार पढ़नी है, और 1 बार जैसे ही आप लोग सूरह कौसर पढ़ लेंगे, तो आखिर में आपने अल्लाह पाक का वो नाम पढ़ना है जिसने फ़कीरों को बादशाह बनाया, जिसने मांगने वालों को बांटने वाला बनाया। देखिए मेरे दोस्तों, आपने अपनी पूरी लाइफ में अल्लाह पाक के बड़े नाम पढ़े होंगे, लेकिन जब आपने आखिर में मेरे दोस्तों अल्लाह पाक का ज़ाती नाम पढ़ना है और ऐसी तरतीब से पढ़ना है। देखिए आज के इस अमल में या अल्लाह का वजीफ़ा 3 बार है। एक मर्तबा शुरू में या अल्लाह, या रज़ाकू, या गनियों के साथ देखें, पहला ही वजीफ़ा दौलत का एटम बम है, फिर दूसरा, तीसरा, लेकिन तमाम चीज़ें आपने बारी बारी पढ़नी है। ये नहीं कि पहला वजीफ़ा आपने पढ़ा तो फिर फ़ोन पर लग गए, फिर आकर दूसरा। ना मेरे करीब ना, जब मेरी वीडियो 30 रमज़ान जुम्मे को आपके सामने आए ना, और आप एमरजेंसी तौर पर अपनी तकदीर को बदलना चाहते हैं, मैंने चैलेंज 3 मिनट का क्या है, 3 मिनट का हर गरीब, बीमार, लाचार को मेरा खुला चैलेंज है। अगर 3 मिनट में जालिम जिद्दी शोहर कदमों में ना गिर जाए, रूठा महबूब कदमों में, बीमारी दूर, गरीबी दूर, तो आपने ये 4 चीज़ें पढ़नी है। और अवल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना, और कोशिश करना शुरू में जब अमल शुरू करें तो 30 रमज़ान जुम्मे को अपने घर में, दुकान में, दफ्तर में कहीं बैठ जाएं, तो सबसे पहले आपने एक मर्तबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। कोशिश करना दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ें। अल्लाह वालों, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़कर आपने दुनिया के सबसे कीमती अमल का आगाज़ करना है। और याद रखिएगा, पूरी दुनिया में ना कोई ऐसा मौका मिलेगा, देखिए ऐसा बरसों बाद होता है, 30 रमज़ान जुम्मा जब इकट्ठा आ जाए तो ये वो रब को राजी करने वाली घड़ियां बन जाती हैं। और इस दिन अगर ये 4 चीज़ें पढ़ ली जाएं, देखें अब आप में से अगर कोई बहन भाई कहता है कि जनाब आली मुझे दुरूद शरीफ आता ही नहीं है, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, तो मेरे गरीब फिक्र ना करना। मेरे गरीब, अगर आप में से कोई बहन भाई दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकता, तो 30 रमज़ान जुम्मे को
گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، کہیں بھی بیٹھ جائیں، صرف ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور فوری طور پر اس لاڈلے جمعے کو دنیا کا سب سے لاڈلا وظیفہ عمل میں شامل کر دیں، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے فوری طور پر جو اس عمل کا قیمتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، میرے دوستو جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یا اللہ یا رزاق یا غنیو، یا اللہ یا رزاق یا غنیو، یا اللہ یا رزاق یا غنیو۔ دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ میں 10 سیکنڈ کی دعا کرواؤں گا، میں آخر میں پورا عمل دوبارہ بھی ریپیٹ کر دوں گا، لیکن آپ نے بار بار ویڈیو اسکپ نہیں کرنی ہے۔ دیکھیں میں بار بار آپ کو عمل، ترتیب، تعداد سمجھا کے تھک گیا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا بہترین عمل، فوری اثر کرنے والا، جسے پڑھتے ہی لوگ دروازے پر آ کر دے کر جائیں اور لوگ آپ سے پوچھے جناب علی کہ تو نے ایسا کیا پڑھ لیا ہے کہ ایک دم سے تیری زندگی میں اتنا سکون، اتنی خوشیاں آ گئیں۔ اب آپ نے 30 رمضان جمعے کو جیسے ہی 7 مرتبہ، دیکھیں پہلا وظیفہ 7 بار پڑھنا ہے، میں نے آپ کو تیسری بار بتا دیا ہے۔ اب مرضی آپ کی ہے، اگر تعداد ترتیب نوٹ نہیں کرو گے تو سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اب آپ نے 30 رمضان جمعے کو اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں بیٹھ کے درود شریف ایک بار پڑھ لیا، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہے، اور فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رزاق یا غنیو، یا اللہ یا رزاق یا غنیو، یا اللہ یا رزاق یا غنیو کو 7 بار پڑھ لیا۔ پھر میں نے آپ کو جو دوسرا وظیفہ بتایا، اور یاد رکھیے گا اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ دیکھیں آپ نے یا اللہ یا محمد کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا، لیکن آج جو پیچھے میں نے آپ کو فل ترتیب بتائی، مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ آپ نے یا اللہ یا محمد کے ساتھ کبھی زندگی میں یہ جملہ شامل کیا؟ نہیں کیا نا میرے دوستو، تو آج کر لینا۔ آج صرف یہ جملہ آپ نے میری بتائی ہوئی تعداد میں صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور یقین کرے 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ دیکھیں یا اللہ یا محمد کو آپ نے، میں نے، ہم نے اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا، لیکن 30 رمضان جمعے کے دن تنہائی میں بیٹھ کر اول آخر درود شریف پڑھ کے درمیان میں تمام چیزیں پڑھنی ہیں، اور جیسے ہی آپ شروع میں درود شریف پڑھ کے عمل شروع کریں، فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ تو پہلا وظیفہ جیسے ہی آپ لوگ پڑھ لیں میرے دوستو، جو کہ اس عمل کا سب سے قیمتی خزانہ ہے، یا اللہ یا رزاق یا غنیوں کو جیسے ہی پڑھ لیں، تو اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، یہ جملہ لازمی شامل کرنا ہے، اور جو تعداد بتائی اسی تعداد میں پڑھ لیجئے گا۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو میں نے آپ کو دنیا کا سب سے قیمتی جملہ بتایا پہلے کلمے کے ساتھ پوری ترتیب سے، اسے بھی آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، جو کہ آج کی اس عمل کی سب سے طاقتور تسبیح ہے۔ دیکھیں سورہ کوثر کو تو آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا، لیکن آج جیسے ہی آپ نے 3 وظیفے پڑھ لیے، اور تیسرے نمبر پر جیسے ہی آپ نے پہلا کلمہ یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دیکھیں آپ نے جیسے ہی پہلے کلمے کو 3 بار پڑھا، اور 3 بار پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد جو میں نے اللہ پاک کا نام آپ کو بتایا، یا فتح 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 کو بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ کر آپ نے فوری طور پر عمل کے آخر میں میرے دوستو آپ نے ایک ہی بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، جسے میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اس عمل میں صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، لیکن جب آپ لوگ صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھ لیں گے تو بالکل آخر میں جو میں نے آپ کو اللہ پاک کا نام بتایا، یا مسبب الاسباب، یعنی کہ اے اسباب کو پیدا کرنے والے، اے غیبی دولت کی بارش برسانے والے، جو تعداد بتائی اسی تعداد میں پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کے مانگیے گا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ عمل کو سمجھنے کے لیے ویڈیو ایک بار کمپلیٹ دیکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جو پوری ویڈیو دیکھتا ہے اسے عمل سمجھ میں آتا ہے، جو بار بار کاٹا پیٹی بھاگا بھاگی میں عمل کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ پورے عمل سے محروم ہو جاتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔